मैं यहीं रहती हूँ and I'm a neighbor, so I see the josh. It feels very good. And I think जैसे मैंने mention किया, I think past this started, मतलब मलाड मस्ती जो शुरू ही हुआ था and COVID happened. But this kind of response is amazing from the people. It shows that you know Aslam ji, who is fabulous as a person because I know him as person. उनका काम दिखता है and इतने लोग अगर इतनी activity में आते हैं which is not a joke I feel. Sorry? I feel that ये बात करने से ज़्यादा child abuse के बारे में हम मैसेज देते हैं but I think awareness is very very important. जब अपने बगल में कुछ होता है तो हिम्मत नहीं होती है बात करने की, बोलने की. And I've been always a person that who believes in all these things कि जब जो है बोल दो. I'm not a person जो ये बोले कि ये मत करो वो मत करो. मैं आपको बोलती हूँ कि I think if you don't speak up for yourself, if you don't help others, you will never be able to conquer anything in the life. Child is something related to our future. और अगर happy for her that she got settled and got a good guy. I feel that she should just be happy and the people who are well-wisher are with her and just want to say that she should be just happy and healthy and wealthy together. Yeah, I personally जो मैंने ग्लिम्स देखे उससे मुझे अर्चना अच्छी लगती है. मुझे निमृत पसंद है and I think Sumbul is coming back on track. छोटी है यार, लोगों ने उसकी जो बैंड बजाई है but मुझे ऐसे लगता है कि यार 30, 40 and 20 फर्क तो होता है ना. तो where is your sensibility going? Why would you troll a 20-year-old girl who is just exploring a world? गलती करके सीखने का मौका है उसका and I think she's learning and I am praying and hoping that her best, she should get her best for the future. हाँ जी यार मैं क्रिएटिव तो हूँ नहीं तो मुझे पता नहीं है क्या चेंजेस होंगे but my best wishes because this house जो आपको देखते हैं वैसा नहीं होता है, अंदर से बहुत अलग होता है. और to survive in this house is not very easy. It's not a joke. Your one vote is very important, yes, because किसी की journey end कर सकता है तो किसी को आगे लेकर जा सकता है. And just want to say that कि आप अगर पहले निकले हो या बाद में निकले हो या लेट तक जा रहे हो या top 5, sometimes it doesn't matter. What matters is you change as a person a lot. Everybody who's watching, okay, let's be very honest and candid. खूब मस्ती करो. 2023 आने वाला और भी अच्छा हो और आपका आने वाला साल आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत सारे सरप्राइजेस दे. प्यार भरे. थैंक यू.
फैन आपका वेट कर रहे हैं आपके नए प्रोजेक्ट का, गानों का, बताइए क्या आ रहा है? I have just finished one Vodka series and one Hotstar ka. I don't know the launch date, so I can't talk about it. Like I always say that let's the right time come, I will speak about it. But yes, I've been always choosy. So when it comes to when you ask me all these questions, so I don't know how to describe and how to put it in one line and summarize it. I think let the right time come. Time affects a lot. And you will also, I think, hope like it. And thank you so much for my last project, which was not very long. It was one episodic, but I got a lot of love and people loved my role as Ruby. It was very bold, very independent, yet at the same time it was something message giving in the dirt. कमल तो कीचड़ में खिलता है, लोग बोलते हैं, लेकिन तरह तरह की बातें भी होती है. So I think that character has a lot of things to say and it actually did. सॉन्ग को भी इतना पसंद किया, नया कुछ आ रहा है कि नया गाना? आएगा, and like I said, अभी let the right time come, I will speak about it. Thank you. You're looking very beautiful in white. Like, what have you say? है हनी सिंह वो जो हर बात पे यो किया करे, लोग करते हैं एक उंगली ये दो किया करे, चैन टोपी से शोभा नहीं है रैपर की, रैपर वो है जो गाने में दारू विस्की किया करे। पुराने गाने होते थे उनमें जो बात थी वो आजकल गानों में नहीं है। पुराने गाने होते थे उसमें शर्म होती थी। थोड़ा मैं वहां पे आ जाऊं आपके पास। पहले गानों में एक शर्म होती थी, लड़का लड़की को कहता था किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूं छुपती छुपाते। और आजकल कुंडी ना खड़का रहा है। अब सिंगिंग का जो प्रोग्राम है, असली सिंगर सुपरस्टार छैया छैया सुखविंदर बाजी अब आएंगे तो असली संगीत शुरू होगा और मुझे आपने बड़ा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अब असली सिंगर जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं। ये देखिए भाई, लेना देना तो व्यापारियों का काम है, दोस्ती बड़ी चीज है, इसलिए शेखर इनसे आज तक दोस्ती निभा रहे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, हकीकत में मैं भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हर बार हमारे साथ रहते हैं और आप लोगों के प्यार के लिए आते हैं। और शेखर के बारे में मैं जितना कहूँ कम है। अगर शेखर नहीं हो तो ये मलाड़ मस्ती की लाइफलाइन जो है कहीं ना कहीं रुक जाएगी। इसलिए शेखर के लिए जोरदार ताली, क्योंकि आज ये मलाड़ मस्ती को इस लेवल पे लाने में अगर दिल का काम किसी ने किया है तो शेखर ने किया है। शेखर का है 10% तो खैर आने जाने की बात है, 10% तो भाई इनका जो है नेक्स्ट टाइम आप मुझे दे देना, मलाड़ मस्ती को दे देना। बहुत कमा लिया है इसने। अरे वाह सर, सही बात। शेखर अगर नहीं होता मेरे साथ तो आज मैं शायद और आगे पहुंच जाता। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इन्होंने जिनका नाम लिया, मैं हकीकत में ये जो मलाड़ मस्ती में अगर ये नहीं आए 5 मिनट के लिए तो मुझे लगता है कि वो जो ब्लड के अंदर बॉईल करने ना, लोगों को खुशियां देने का जो काम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और आप उसको बरकरार रख रहे हो। मैं परवरदिगार ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आवाज और आपका टैलेंट इसी तरीके से बरकरार रहे और बगैर किसी लेन देन के आप मलाड़ मस्ती में ही आते रहे। अरे थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू आपका प्यार बना। Once again, I request everybody सुदेश जी के लिए। हकीकत में कहता हूं, इतना जबरदस्त कलाकार से मैंने सुखविंदर जी के लिए जितना इंतजार किया मलाड़ मस्ती में और किसी के लिए नहीं किया। इतना प्यार, इतना जबरदस्त। मैं चाहूंगा कि वो फनकार जिनको शायद कुदरत जो कई फनकार इस दुनिया में देता है, लेकिन कुछ फनकार ऐसे देता है जिनकी आवाज में वो तासीर होती है, वो ताकत होती है, मेरे ख्याल से वो शायद ही कुछ लोगों में देखने को मिलती है। मैं चाहूंगा कि सुखविंदर जी आए और अपना प्यार, अपना दिल, अपने धड़कन सब इस मलाड़ मस्ती को। Everybody's hands up in the air. बस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सुबह दौड़ने जा रहा था, वैसे ही आ गया बीच से सीधा। सो मुझे सब चेहरे ऐसे लग रहे हैं जैसे कितने सारे सूरज चमक रहे हैं। सो टाइम कम है, मैं शुरू करता हूं। दिल में जोड़े रात की मटकी फोड़े, कोई गुल्लक निकाले, आज गुल्लक का तोड़े, अरे दिल दिल तारा मेरा दिल ही खाते, अरे कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल, अरे चल चल मलाड मस्ती में होगी जाए। Come on everybody! आपको ये वीडियोस तो सब जगह मिल जाएंगे, आप इसके पॉकेट में रख लीजिए मोबाइल। लेट्स एंजॉय यार, वीडियोस बहुत मिल जाएंगे, एवरीवेयर यू विल फाइंड। है आजा दिल जोड़े रात की मटकी फोड़े, कोई गुल्लक निकाले, आज गुल्लक तो तोड़े, कम ऑन आजा आजा, अरे दिल दिल तारा मेरा दिल ही गाते, थोड़ी थोड़ी पैसा पैसे ही गाते, अरे दिल दिल तारा मेरा दिल ही गाते, थोड़ी थोड़ी पैसा पैसे ही गाते। चल चल सड़कों पे होगी everybody sing together. पैसे ही जाके तारा मेरा दीदी ही घटे, थोड़ी थोड़ी पैसा पैसे ही घटे। चल चल अरे चल चल, अरे चल चल सड़कों पे होगी everybody sing together. Come on, man. सड़क पे चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी है भाई। ही गाते, थोड़ी थोड़ी पैसा पैसा ही गाते। चल चल मलाड मस्ती में होगी थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जब ये शुरू हुआ था, जब ये एपिसोड मतलब ये शो हुआ था, 5 साल हो गए आज जो पहला हुआ था, तो मुझे उसमें भी मौका मिला था। असलम जी ने मुझे बुलाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे मुझे वैसे लगा था आज भी वैसे नहीं, आज तो ये बहुत बड़ा शो हो चुका है। ये बॉलीवुड जैसे बॉलीवुड है एक, मतलब हर आर्टिस्ट जिसको भी, लेकिन ये उनका प्यार है। सब यहाँ एक प्यार के लिए आते हैं। यहाँ कोई वो नहीं है कोई प्रोफेशनल बन के आता है, यहाँ कोई पैसे के लिए आता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये भी गलतफहमी निकाल दो कि सब प्यार के लिए आते हैं, उनका प्यार है। और शेखर जो मेरा मैनेजर है, और आजकल मेरे पास बहुत कम आता है, बहुत टाइम कम देता है, तो मैं सोचता था ये जाता कहाँ है, मैं बहुत शक करता था। लेकिन अभी पता चला है कि ये 1 महीने से इधर ही रात दिन काम कर रहा है और ये संभाला। इसने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा जो योगदान है वो शेखर सिंह का है। और असलम भाई उनको वाकई छोटा भाई मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, ये प्यार के काबिल है। और मैं असलम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने
मतलब मलाड मस्ती जो है वाकई यहाँ पे मस्ती होती है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, गर्मी में बाहर खड़े हैं, हम थोड़ी देर के लिए आते हैं तो ये देख लो हमारा हाल, लेकिन उनका प्यार है ऑडियंस का, सलाम है ऑडियंस को भी, क्या कमाल है। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इंजॉय मस्ती के साथ साथ जो मेन है एक मकसद होता है, हर जैसे कोई फिल्म होती है, हर फिल्म में कोई मैसेज होता है, ये शो में एक मैसेज भी दिया जाता है जो आज का मैसेज है जो बच्चों के लिए, यहाँ वो जो और भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने एक दो वीडियो भी देखी है शराब का भी कुछ, मतलब हर चीज़ के लिए जो है आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको जो है एक मैसेज दिया जा रहा है कि कैसे रहना है, कैसे रहना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों से बचना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर देखते हैं आप भी लोग तो अच्छी बात है, और यहाँ का भी जो है आप ज़रूर देखना, मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर देना। बिग बॉस जो है आज मेरा एक एपिसोड रिलीज हुआ है कृष्णा के साथ, जो है बिग बॉस जो उसका आता है वूट पे, उसमें बड़ा आज ही आया है वूट पे, तो वो देखना। और बिग बॉस में मतलब मैं किसी के लिए इतना बोल नहीं सकता क्योंकि सारे अच्छे हैं, क्योंकि सब अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे तो बिग बॉस का गेम अच्छा लगता है, मेन कि जो हर साल बुला ही लाते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से हिट हो ही जाता है शो, ये उनका ही गेम सबसे अच्छा है। जैसे करोड़पति में बच्चन साहब ही है करोड़पति, कि जो मेन जो है कि इतनी देर से बांध के रखा है, तो बिग बॉस जो है वो कमाल का शो है, नंबर 1 शो है, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता, कमाल है। मतलब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्या बोलते हैं वो मैंने बोल दिया, बताया मैंने, तो क्या बोलते हैं लास्ट में, नो कमेंट्स। थैंक यू सो मच, सारी प्रेस का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। तो जाते जाते नए साल की शुभकामनाएं, खुश रहें और आने वाला साल और अच्छा हो, इससे भी अच्छा हो, शांति बनी रहे। थैंक यू। एक फोटो तो करा लीजिए। हाँ, फोटो ले ले। जाफर का है तो थोड़ा पीछे आ जाए। असलम सर, ये यहाँ पे सर क्या कहना चाहेंगे मलाड मस्ती के बारे में, असलम सर के बारे में? ये बहुत एक फ्रेश आइडिया है और लोगों को ये अलग एनर्जी मिलती है। इस तरह के फंक्शन होने चाहिए। इसकी स्पेशलिटी सुबह अर्ली मॉर्निंग होना, ये भी एक स्पेशलिटी है। ज़्यादातर फंक्शन नाइट को होते हैं, तो इसका इट्स अ वेरी स्पोर्टी। आई लव दिस कॉन्सेप्ट, आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट। It was not how was, it is still going on. I'm carrying energy with myself wherever I will go in future. मुझे बहुत पसंद है और असलम शेख जो है वो बहुत ही बड़े पायस इंसान हैं और वेरी गुड आइडिया। आई रियली लव दिस। मैंने जब इसके बारे में पता किया, इस शो के बारे में, मेरी अपनी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं आई शुड कम, तो मैं आया हूँ। आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड। मतलब मेरे लिए एक नया आइडिया है और बहुत फ्रेश है। थैंक यू, थैंक सबसे पहले जब भी यंग क्राउड होता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं हमारे उन दिनों में पहुंच जाता हूं, मैं भी कॉलेज में था, और इतना अच्छा रिस्पांस, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, असलम शेख भाई को मैं धन्यवाद दूंगा। और नॉर्मली जैसे मैं बोलता हूँ हमारी ऑडियंस जो होती है वो अबाउट 35-40 होती है, लेकिन आज इन यंगस्टर्स का जोश देखकर मज़ा आ गया और जो रिस्पांस मुझे दिया, उन्होंने जो प्यार दिया, उसके लिए
बहुत मज़ा आ गया। मतलब मेरा खून और मेरा मसल मास बढ़ गया आज। लेकिन साथ ही अपना अक्सर सभी नए गाने सुन रहे थे, लेकिन आज जब बच्चन साहब के सब ही गाने आज आप सभी के रिएक्शन सब देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के रिएक्शन होते हैं? हमारे देश में वन पीस है, एक ही है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और जो सबसे ज़्यादा बिजी है और जिनकी सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में क्या कहते हैं ना फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी आवाज़ में बना हूँ और उन्होंने मुझे परमिशन दिया है गाने के लिए। तो अमिताभ जी को जितना मैं थैंक्स कहूँ और हमेशा उनकी अच्छी सेहत के लिए हम दुआ मांगते हैं। साथ ही सब गानों को इतना पसंद करते हैं आजकल लोग, लेकिन हाल ही में जब पठान का गाना नया आया है उसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपका इसमें क्या कहना है? मेरे घर में टीवी नहीं है तो मैंने वो देखा नहीं, मैं मूवी रिलीज़ होगी तब देखूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मूवी के टाइटल के ऊपर बात की जा रही है, कभी कपड़ों के ऊपर बात की जा रही है। एक्चुअली ये मेरा विषय नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को हंसाना जानता हूँ। आजकल लोग हंसना भूल गए, मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। देखो इनके बच्चों को मुस्कुरा, मेरा वही सब्जेक्ट है और बाकी चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं। बिल्कुल, नया साल एक तो सबसे बहुत बहुत मुबारक हो और ये पहला नया साल है जो 2-2.5 साल की छुट्टी के बाद, मतलब बहुत दहशत के बाद आया। तो इस नए साल में एक प्रण करें कि हम अपने आप को, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को संभालें और अपनी जिम्मेदारियां समझें। ये जो भी हुआ है अब हमारी वजह से हुआ, तो एंजॉय कीजिए लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मत हटिए, अपनी फैमिली की तरफ, अपने मोहल्ले की तरफ, अपने देश की तरफ। बस सबको नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, अच्छी सेहत हो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, भरपूर माल कमाएं और अच्छे काम में उसको अच्छे काम में उसको खर्च करें। तो दोस्तों जैसे प्रॉमिस किया था, जैसे मलाड़ मस्ती कुछ प्रॉमिस करके तो निभाती है, वैसे हमारे साहब एमएलए सर जब प्रॉमिस करते तो निभाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आज मलाड़ का नाम आसमान छू रहा है इसके लिए जगह, यहाँ पे टैलेंट, आप लोग में से कोई यहाँ पे आना चाह के परफॉर्म करना चाहता है? ये प्लेटफॉर्म ये मुमकिन। आपकी उनकी कौन सी फेवरेट मूवी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? जोर से। ऑलराइट, यहाँ पे। ऑलराइट एवरीबॉडी, फाइनली वी हैव द फन। छोरी जबरन जोरा जोरी छुपा छुपी खेलने लगी। ओके ठीक है। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मतलब सुबह सुबह मुंबई में 8:30 बजे इतनी सारा एनर्जी, क्या बात है, सुनाई नहीं दे रही। मैं तो असलम भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इतने सारे लोगों को पिछले 5 सालों से इकट्ठा किया हुआ है और जिस कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं, आप बहुत बहुत आइए असलम भाई, वेरी गुड, वेल डन। मैं क्योंकि यहाँ पर मोस्टली यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो फॉर्मूला है वो फेलियर को सेलिब्रेट करना है। मेरे ज़िंदगी में कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, कभी भी नहीं। तुम्हारे कितने आते थे बेटा? अच्छा, आप में से 50% से ऊपर कितने लोगों के आते? अरे बाप रे, आप तो बड़े पढ़े लिखे लोग हो यार। और 60% से ऊपर,
ओ माय गॉड, 70% से ऊपर। फिर भी आप नीचे हो, मैं ऊपर हूं। मैं अनुपम जी के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 500 से ज्यादा फिल्में इन्होंने की है। अगर अंताक्षरी भी शुरू करेंगे तो अंताक्षरी खत्म होगी, इनकी फिल्मों के नाम मुझे लगता नहीं खत्म हो। थैंक यू। मुझे बताया गया कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज के बारे में आपने ये एग्जैक्टली हर साल हम अनुपम जी पिछले साल जब हमने किया था तो मेल न्यूट्रिशन के लिए किया था, और मेल न्यूट्रिशन में जो बच्चे मर जाते हैं उनके लिए करीबन 25 लाख रुपए का चेक यहाँ से हमने उनको डोनेट किया था। इस बार जो इस देश की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चाइल्ड अब्यूजमेंट है जो कहीं ना कहीं थमता नजर नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं रोज टीवी पे किसी ना किसी, तो इस बार हम वो कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं। और मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अनुपम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ कि ये भी फिल्म जो है उनकी जो आ रही है मेरे ख्याल से सुपर डुपर हिट होगी। और ये जो ग्रहण हमारे फिल्म सिटी के ऊपर कहीं ना कहीं लगा, यहाँ से शुरू होगा। मेरी तो इस साल 3 फिल्म हिट हुई हैं। सुपर, जोरदार तालियां उनके लिए। 3 फिल्में। हिमाचल प्रदेश में शिमला में मैं पैदा हुआ, एक के घर पे। मेरे पिताजी की पूरे महीने की तनख्वाह 90 रुपए थी। 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे। अगर वो वहां से निकलकर चंडीगढ़ से होता हुआ कुछ भी हो सकता है। एक्टर प्रिपेयर्स एक्टर। सत्यार्थी जी के जिनको नोबेल पीस मिला था, वो बच्चों पर बहुत और उनका काम बढ़ाइए, और जो काम यहाँ हो रहा है उसको और आगे ले जाइए, और आगे ले जाइए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच अनुपम जी। और हमने यहाँ पे एक टैलेंट हंट स्टेज भी रखा है, वो भी मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप देख लें ताकि आपसे इंस्पायर लोग फेलियर को जो है अपने दिल पे और दिमाग में नहीं बिठाए। जिंदगी और तकदीर लिखने वाला ऊपर वाला है। आप देख सकते हैं इनको कि कम मार्क्स लेके भी ऊपर, लेकिन आपको कम मार्क्स नहीं लेना है। नहीं, जरा मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 22 तारीख को और 29 तारीख को साल के एंड में एक और फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है कनेक्ट। डरावनी फिल्म है, आप लोग जरूर देखिए। और जाने से पहले बोलना चाहता हूं कि मेरी फेवरेट जो पोएम है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की जय हो। थैंक यू वंस अगेन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनुपम सर की। पूरी मलाड मस्ती टीम की तरफ से अनुपम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनकी आने वाली फिल्म के लिए, और उनकी इसी तरीके से और आवाज और उनका टैलेंट यूं ही चढ़ता रहे, यही बढ़ता रहे। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बना के लोगों को इंस्पायर करने काम किया, और यहाँ पे आके इस मलाड मस्ती को जो है 4 का काम, इसकी दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि उनका फेलिसिटेशन जोरदार तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा राजा गोपाल सर एएलएम टीम से, और गोल्ड मेडल से टीम से अजीत सर प्लीज आगे। राजा गोपाल सर, अजीत सर, गोल्ड मेडल टीम, धन्यवाद करें अनुपम। जोरदार हाथ उठाइए उनके लिए। That's it. Everybody, once again, let's give it up for Anupam Sir. बहुत शुक्रिया।
सर एक सेकंड या अच्छा नहीं नहीं यहाँ नहीं दीपक भाई को नहीं नहीं सर एक नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मुझे लगता है कि संडे वाले दिन इतने एनर्जेटिक लोग मलाड मस्ती में आए हैं तो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द पीपल बिहाइंड इट। कितने लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी मुझे शेखर ने बताया जो जिसने ये इवेंट कॉन्सेप्ट बनाया था, उसका पहला इवेंट मेरे साथ था हैदराबाद में। और असलम शेख साहब जो काम कर रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो हर साल वो नया नया थीम चुनते हैं, इस साल जो उनका थीम है चाइल्ड अब्यूज़ है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन अ सिटी लाइक मुंबई सबसे खासकर ये कॉज को उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इतने सारे एनर्जी, इतने सारे लोग, इतने सारे यंगस्टर्स आए हैं तो होप इज़ अलाइव। हमारे यहाँ बोलते हैं आजकल की बच्चे सुबह उठते नहीं हैं, ये बट ऐसा कैसे नहीं उठते हैं, तो सुबह उठते हैं और इतना शोर मचाते हैं। तो मैं कोई भी इस तरह का कॉज हो, कोई भी इस तरह की मस्ती हो, उसमें अपने आप को शामिल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ ये साल 2022 मेरे गोल्डन सालों में से एक साल है। हालांकि मैं उन सालों को भी गोल्डन समझता हूँ कि जो उतने अच्छे नहीं गए, मगर इस साल कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई, और इसके बाद अब कनेक्ट आ रही है। 22 तारीख को तमिल वर्जन है और 29 तारीख को हिंदी वर्जन है और मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छी जाएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये फंक्शन और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में।